نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ایلاف، مانوس کرنے کے لیے، قریش کو، ایلاف مانوس کرنے کے لیے، الفت پیدا کرنے کے لیے، قریش کو، ایلافیہم مانوس کرنا انہیں، رحلت الشتاء، رحلہ سفر، رحلہ کس کو کہتے ہیں؟ سفر۔ کس سے مانوس کرنے کے لیے؟ ایلافیہم مانوس کرنا انہیں، رحلت الشتاء سردی کے سفر میں، والصیف اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنا انہیں، سردی، الشتاء سردی، والصیف گرمی کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا چاہیے کہ وہ عبادت کریں، مینس تو، لام جب آیا ہے تو تاکیدن آیا ہے، تو چاہیے کہ یعبدوا وہ عبادت کریں، رب کی، حاذل بیت اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی وہ جو، اطعمہم جس نے کھانا کھلایا انہیں، من جوع بھوک میں، جوع کس کو کہتے ہیں؟ بھوک کو کہتے ہیں، اوکے، من جوع بھوک میں کھانا کھلایا، وہ آمنہم اور امن دیا انہیں، روٹ دیکھیے اس کا، حمزہ میم نون، امن ہے نا، آمنہم اور امن دیا انہیں، من خوف سے۔ دیکھیں دیکھتے ہیں اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القریش، اس سورے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ قریش جو پہلی آیت کا آخری ورڈ ہے، اس کے پر اس کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ سورہ مکی ہے، اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع اور 15 کلمات ہیں، ٹھیک ہے، 4 آیتیں ہیں اس کے اندر اور 15 کلمات ہیں، اور یہ سورہ اہل مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے جو دولت اور عزت اور یعنی اللہ نے ان کو عطا کی تھی، یعنی تو اللہ تعالیٰ اس سورے کا جو مرکزی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف لوگوں کو یعنی اپنی عبادت کے لیے ابھارا ہے اس سورے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی آیت یعنی لإیلاف قریش، یعنی قریش کو مانوس کرنے کے لیے، مانوس کرنا کیا ہے، اس کے 2 معنی لیے گئے ہیں۔
یعنی ایکچولی ایلاف کا مطلب کیا ہے؟ الفت پیدا کرنا. اوکے, ایلاف کا مطلب کیا ہے؟ الفت پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یعنی ایسی محبت جو یعنی یہ کہنا چاہیے ہم خیال ہونے کی وجہ سے الفت پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں, اگر خیالات ملتے جلتے ہوں, ہے نا, ایک دوسرے کے خیالات ملتے جلتے ہیں, تب ہم ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے نا. تو الفت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی محبت جو ہم خیال ہونے کی وجہ سے پیدا ہو. زیادہ تر فرینڈس میں آپ دیکھیے الفت ہوتی ہے نا, محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے, ہم خیال ہوتے ہیں اس لیے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, ہے نا. تو وہ جو ہمارا قریب آنا ہے, الفت جو کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ محبت کرتے ہیں, ہم خیال ہے, میرے بھی خیالات ایسے ہیں اور اس کے بھی خیالات ایسے ہیں, ہم خیال ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو ایلا ایکچولی اور ایک جو دوسرا معنی لیا گیا ہے اس کے, یہ کہ بکھرے ہوئے چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, بکھری ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں, دو معنی لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے معنوں میں بھی اس کو کہتے ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ عرب میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد, جس کا نام قصی تھا, یعنی قصی بن کلاب, آپ سب کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا پردادا یعنی جد اعلیٰ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو قصی بن کلاب نے سوچا کہ یہ اصل میں کیا ہوتا تھا, عرب بادیہ نشین تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے رہتے تھے, اور ان کا اپنا کوئی پراپر ٹھکانہ نہیں تھا, کوئی علاقہ نہیں تھا جہاں یہ جمع ہوتے. تو انہوں نے سوچا کہ ایک جگہ پورے قبیلے والوں کو, یہ قریش کا جو قبیلہ تھا بکھرا ہوا تھا, سب الگ الگ علاقے میں رہتے تھے, کیونکہ یہ لوگ ٹرائبل پیپل تھے, ٹرائبس تھے ان کے, پورے قافلے رہتے تھے ان کے. تو انہوں نے سوچا کہ ان کو ایک جگہ جمع کریں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مکے میں ان سب کو اکٹھا کیا, اور بہت محنت سے انہوں نے ان کو اکٹھا کیا. اسی بنا پر قصی کو یعنی مجمع کا لقب دیا گیا, یعنی جمع کرنے والے. تو اس طرح کعبے کی جو تولیت تھی اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی. آپ دیکھیے پراپر وہاں رہنے لگے کعبے کے پاس, مکہ پورے قبیلے قریش والے ایک جگہ جمع ہو گئے. ایک تو جمع ہونے کی وجہ سے ان کو تقویت, اور ایک دوسرے سے مطلب ایک بہت بڑا قبیلہ, اور قریش کا جو قبیلہ تھا ان کے ہاتھ میں کعبے کی تولیت آ گئی تھی. یعنی تولیت کا مطلب کیا ہے؟ متولی بنا دیا گیا تھا, کیئر ٹیکر بنا دیا گیا تھا کعبے کا. تو کعبے کے اندر جانے کی یعنی ایون چابیاں ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے, تو کعبے کے اطراف جو بھی, اب جیسا حاجی آتے تھے اس دور میں بھی حج ہوتا تھا, مگر ان کا حج ڈفرینٹ ہوتا تھا, ہے نا, مطلب بہت ہی خراب طریقے سے, یعنی تالیاں پیٹتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, اور وہ ان کا حج ہوتا تھا, اور برہنہ طواف کرتے تھے. تو وہ ان کا طریقہ غلط تھا, لیکن چابیاں ان کے ہاتھ میں تھی. ٹھیک ہے, تو جو اللہ کا گھر ہے, اور اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ اور جینے کے لیے آپ سوچیے, مکہ ایسا شہر ہے جہاں پہاڑی علاقے ہے نا, پہاڑی علاقہ ہے وہ, تو جہاں کوئی زرخیزی نہیں ہے, یعنی کوئی پھل پھول نہیں اگتا ہے, اور سبزی ترکاری نہیں ملتی ہے, تو جینے کے لیے یہ چیزیں تو چاہیے نا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کا پھلوں کا رزق دلا, تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قریش قبیلے کو یہاں جمع کیا. اور پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے, یعنی اپنا گزارا کس طرح کرتے تھے کہ تجارت کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو تجارت کر کے کیا کرتے تھے, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. جیسا سردی کے موسم میں یہ لوگ کیا کرتے تھے, یعنی ملک شام کی طرف جاتے تھے, اور گرمی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے تھے. دو الگ الگ علاقوں کی طرف سفر کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اصل میں گرمی میں ملک شام کی طرف جاتے تھے, اور سردی میں یعنی یمن کی طرف جاتے تھے, کیونکہ یمن گرم علاقہ تھا, سردی میں موو ہوتے تھے, جا کے وہاں سے تجارت کر کے آتے تھے. اور پھر ملک شام کیونکہ ٹھنڈا علاقہ تھا, گرمی میں ملک شام کی طرف جاتے, اور پھر تجارت کر کے سامان لے کر آتے, خرید و فروخت لوگوں کو بیچتے,
اور پھر اس سے جو ارننگس ہوتی تھی اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا، اور یعنی پھل اور بہت ساری چیزیں وہاں سے وہ لوگ تجارت کر کے لے کر آتے تھے۔ تو اب ان کا یعنی بہت زبردست طریقے سے ان کی تجارت چلنے لگی۔ اور ایک چیز کیا ہوتی تھی کہ کعبے کے اندر ان کے 360 لوگوں الگ الگ مختلف قافلے والوں نے اپنے اپنے بت رکھے تھے۔ 360 بت تھے کعبے کے اندر، اور وہ بتوں کی تو ہوتا یہ تھا کہ ہر قافلے والا اپنے اپنے بت لا کر رکھتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایک سب سے پہلے ایک آدمی تھا جس کو ایک کہیں وہ ٹریول کیا تھا، تو اس کو وہ بت پسند آیا تو اس نے سب سے پہلے ایک بت لا کر رکھ دیا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو اب پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہوا، پورے جتنے بھی قافلے والے تھے یعنی 360 بت الگ الگ قافلوں کے الگ الگ انہوں نے کعبے کے اندر رکھ دیے تھے۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ یہ جب سفر کرتے تھے یعنی سردی کے موسم میں یعنی یمن کی طرف جاتے تھے، اور گرمی کے موسم میں ملک شام کی طرف جب سفر کرتے تھے، اور یعنی جو قافلے والے ہوتے تھے، آپ دیکھیے ارننگ کے لیے کیا کرے بنے، ہے نا، کیا کرے، مطلب وہاں کوئی یعنی زراعت نہیں کر سکتے تھے، کوئی اتنے ایڈوانس ٹیکنیکس نہیں تھے، ان کے پاس اونٹ تھے، بہت دور دور جا نہیں سکتے تھے۔ تو جو بھی قافلہ آتا تھا، جیسے نیکسلائٹس آپ دیکھیں راستے میں لوگوں کو لوٹ مار کرتے ہیں، تو ویسے الگ الگ قافلے والے جیسے ہی یہ سفر کے لیے نکلتے، جیسے ملک شام کے سفر کے لیے نکلتے، تو اٹیک کرتے تھے، ہے نا، ان کے اوپر حملہ کرتے تھے، اور تاکہ وہ جو بھی مال وہ تجارت کا لے کر آ رہے ہیں اس کو لوٹ مار کر کے لے لیتے تھے۔ لیکن قریش قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل یعنی سیکیورٹی دی تھی کہ یعنی ان کو لوٹ مار نہیں کرتے تھے لوگ، جیسے بتا دیتے تھے کہ یہ قریش قبیلے کا ہے، یعنی اگر یعنی قتل کرنے کے لیے بھی آگے بڑے سمجھے تو فوراً چھوڑ دیتے تھے، قریش قبیلے کا ہے نا، اگر اس کے اوپر بیٹھ بھی گئے نا تو ان کو چھوڑ دیتے تھے، کہ یہ قریش کے قبیلے کیا ان کی خاطرداری کر کے چھوڑتے تھے۔ تو کیا چیز تھی یہ، ہوتا کیا تھا کہ یہ تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایک تو کعبے کی تولیت ان کے ہاتھ میں تھی، یعنی کعبے کے کیئر ٹیکر تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے بہت عزت دلائی تھی۔ عزت کیوں؟ کیونکہ اللہ کا گھر کے متولی ہے یہ، ہے نا، اللہ کے گھر کے کیئر ٹیکر ہے، اسی لیے ان کو عزت دلائی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر وہ قافلے والے لوٹتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو نہیں لوٹتے تھے، جس کی وجہ سے یہ آسانی کے ساتھ سفر کرتے تھے، یعنی ان کو کوئی تھریٹ نہیں تھا، ان کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی قافلے والا ان کو لوٹے گا، اسی لیے وہ آسانی سے سفر کرتے تھے، یعنی گرمی میں ملک شام کی طرف جاتے، اور سردی میں ملک یمن کی طرف جاتے، اور دو مختلف سفر کرتے تھے، یہاں سے وہاں جاتے اور پھر تجارت کر کے سامان لا کر بیچتے تھے۔ اور ایک غرض کیا تھی، لوگ ان کو چھوڑتے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ کعبے کے اندر انہوں نے 360 جو بت رکھے ہوئے تھے، مختلف قافلے والے، مختلف قبیلے والے، جو انہوں نے رکھا تھا، تو کیا ہوتا تھا، اگر تھوڑی بھی گڑبڑ اور شرارت کرتے یا قریش کے قبیلے والوں کو ستاتے، کیونکہ کعبے کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھی، تو یہ قریش کیا کرتے تھے، ان کے جو بت تھے وہ نکال کر کعبے سے باہر کر دیتے، ہے نا، پھینک دیتے تھے نکال۔ تو اب ان کو ڈر یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی گڑبڑ کریں اگر قریش والوں کے ساتھ، تو یہ قریش والے ہمارے بتوں کو نکال کر پھینک دیں گے، ہے نا، اور پھر یعنی کہ اور جس کا بھی یعنی خدا وہاں ہوتا تھا، اب مطلب خدا یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک کے جو بت ہوا کرتے تھے، تو وہ یعنی کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب ہم یعنی ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہم بھی یعنی کچھ ہے نا، تو وہاں رکھا کرتے تھے، تو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اگر کوئی شرارت کرتا تو ثبوت نکال کے باہر کر دیتے۔ تو اب ہوا یہ کہ قریش کو اللہ نے عزت دلائی، ہے نا، ان کو امن بخشا، اللہ نے آسانی پیدا کی تجارت کرتے ہیں، تو وہی چیز کا ذکر اللہ رب العالمین یہاں کر رہے ہیں۔ پہلی آیت دیکھیے، اب آپ کو سمجھ آئے گا، لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم مانوس کرنا انہیں، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو آسانی پیدا کی، ہے نا، چونکہ قریش کو مانوس کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، سردیوں میں بھی اور گرمی کے موسم میں
इलाफिहिम मानूस करना उन्हें रिहलत शिताई, सफर, रिहला क्या है, सफर है ना, शिताई सर्दी के सफर में, व सैफ और गर्मी के सफर में। आप देखिए, सर्दी में मुल्क यमन की तरफ जाते और गर्मी में मुल्क शाम की तरफ जाते थे। मतलब ना सर्दी सताती थी उनको, ना गर्मी सताती थी, वहां मतलब तिजारत करते थे आसानी के साथ, है ना, काफिले वाले भी नहीं सताते थे उनको। और यानी एक ठंडे इलाके की तरफ सफर करते थे और एक गर्म इलाके की तरफ सफर करते थे। दोनों भी आप देखिए, अगर यानी कोई एक जगह सफर करे और गर्मी की वजह से सफर ना हो सके, और फिर यानी मुश्किल हो जाती है ना, यानी सरद इलाके में जाकर गर्म चीजें खरीद के लाते थे लोगों को, यानी करते थे। और फिर ऐसे ही उनकी तिजारत थी कि दोनों भी सीजन्स में, है ना, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का। यानी आप सोचिए, किसी के पास अगर फरावानी है और जिसके पास जॉब है, और वो यानी कोई भी मौसम में हमेशा उसको फरावानी है पैसों की, तिजारत अच्छी होती है उसकी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अच्छी तरीके से कमाता है, तो ही इज रिच मैन, है ना। तो अब देखिए, बाज लोगों के कैसी कैसी तिजारत होती है कि सर्दी में, अब जैसा कूलर का जो तिजारत कर रहा है, उसकी सिर्फ गर्मी में बिक्री होती है ना, सर्दियों में उसका वो तिजारत स्टॉप हो जाती है ना। जैसे एसी वाले हैं, एसी सिर्फ गर्मी में बिकते हैं, है ना, तो फिर सर्दियों में तो तिजारत बंद हो जाती है। तो यानी इतना कुछ नहीं हो सकता वो आदमी जो जिसकी तिजारत सर्दी में भी चलती है और गर्मी में भी चलती है ना। तो ऐसे ही कुरैश के जो कबीले वाले थे, उनको अल्लाह ताला ने सर्दी के मौसम में भी यानी आसानी पैदा की, अल्लाह ताला ने, और गर्मी के मौसम में भी बाफरागत वो जाकर तिजारत कर सकते, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि वो पूरा सामान लाकर जिद्दा में रखते थे, और वहां से जो अरब कबाइल होते थे, यानी मक्के के अतराफ के जो कबाइल होते थे, आसानी से जाकर अब वो चीजें ला लेते थे। तो सफर तो वो लोग लंबा करते थे, जाके तिजारत यानी सामान लेकर आते थे। और आप देखिए, जीने का यानी जीने के लिए आसानियां पैदा हो गई थी इनके तिजारत की सफर की वजह से, इनकी जो ट्रेडिंग थी उसकी वजह से दूसरे लोगों की भी सहूलतें हो जाती थी। और इनको लूट मार नहीं करते थे दूसरे काफिले वाले, क्योंकि ये काबे के मुतवल्ली थे, ठीक है। तो इनको ये इतना बड़ा एजाज और इतना प्रोटेक्शन क्यों मिला, क्योंकि ये अल्लाह के घर के मुतवल्ली थे, ठीक है। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहे हैं, जब अल्लाह ने तुमको इतनी सहूलत दी है, तुम्हारी तिजारत इतनी अच्छी है, तो अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फल याबुदू, चाहिए कि वो इबादत करें, फल याबुदू, चाहिए कि वो इबादत करें, रब्बा हाजल बैत, रब की, हाजल बैत, इस घर के रब की इबादत करें। रब, है ना, बैत, बैत किसको कहते हैं, घर को, है ना। तो यानी इस घर के रब की इबादत करें। तो अल्लाह ताला ने कुरैश को मुखातिब फरमाकर जो गर्मी और सर्दी के सफर में जो एहसान किया है अल्लाह ताला ने, कि इनको अमन बख्शा है ना, इनको लूट मार करने से बचा लिया है। और इनको ये एजाज क्यों मिला, क्योंकि ये घर के, अल्लाह के घर के केयर टेकर है ना, अल्लाह के घर के मुतवल्ली है। तो यानी जो तुम्हारा सफर तो अल्लाह ताला ने मुमकिन किया है। तो इतनी आसानी जब अल्लाह ताला ने की है, तो तुमको क्या चाहिए, फल याबुदू, चाहिए कि वो इबादत करें, फल याबुदू, चाहिए कि वो इबादत करें, रब्ब हाज़ल बैत, वो क्या करने लगे, उस घर के अंदर बुतों को रखकर पूजा करने लगे। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या चाहते हैं कि उस घर के रब की इबादत करें, जिसका घर है वो, उसकी इबादत करें, ना कि ना वो घर की, ना वो घर के अंदर जो बुत है उसकी, है ना। तो असल में हम जो काबे के अतराफ तवाफ वगैरह भी करते हैं, वो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं, है ना। यहाँ तक कि वो जो हजर अस्वद है उसको जब चूमते हैं, उमर रज़ा तआला ने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ये चूमता हुआ ना देखता तो मैं तुझे कभी ना चूमता, है ना। तो वो चूमते भी इसलिए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना। और हम उस तरफ डायरेक्शन करके इसलिए नमाज पढ़ते हैं कि एक ही सिमत में हमारे हम सब एक सिमत में आ जाए, एक यूनिटी हो जाए हम सबकी, अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम करते हैं। तो असल में वो घर की इबादत नहीं, घर के अंदर जो बुत है उसकी नहीं, बल्कि तुम उसकी इबादत करो जिसने, जो वो घर का रब है ना, जिसका वो घर है, उसकी इबादत करो। अल्लाह ताला ने ये यानी
हुक्म दिया है ना, फलियाबुदू चाहिए कि वो इबादत करें, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करें। एक अल्लज़ी, आयतें देखते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए इंशाअल्लाह। रब्ब हाज़ल बैत, उस घर के रब की इबादत करें, वो जिसने क्या है आप देखिए, फलियाबुदू चाहिए कि वो इबादत करें, रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे सफरों को आसान किया है, गर्मी के सफर में भी आसानी पैदा की है, सर्दी के सफर में भी आसानी पैदा की है, और फिर अल्लाह ताला ने तुमको लूट मार होने से बचा लिया है। अल्लाह ने जब इतनी सहूलतें तुमको मुहैया की है, और फिर वो और अल्लाह का एहसान आगे देखिए आयत में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, अल्लज़ी अतअमहुम, वो जिसने तुमको खाना खिलाया। ताम, आप देखिए ये जो रूट है ना इसके अंदर ता आइन मीम ताम, वो ताम किसको कहते हैं? रेस्टोरेंट को कहते हैं ना, मतलब जिसमें खाना दिया जाता है ना। तो अतअमहुम, जिसने खाना खिलाया तुमको, उन्हें, है ना, उसने तुम्हें खाना खिलाया है ना, यानी मक्के के लोगों के लिए मुखातिब है, लेकिन हम अपने पर भी इसको लेंगे क्योंकि ये आयत सबके लिए आई है ना, क़यामत तक के लोगों की गाइडेंस है ये कुरान। तो अल्लज़ी अतअमहुम, वो जिसने खाना खिलाया उन्हें, मिन जू, भूख में, वो आमनहुम, और अमन बख्शा उन्हें, अमन दिया उन्हें, मिन खौफ, खौफ से, है ना, भूख में खाना खिलाया अल्लाह ताला ने, वो आमनहुम, और अमन दिया उन्हें, मिन खौफ, खौफ से, है ना। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने भूख में इंसान को खाना खिलाया और अमन बख्शा खौफ से। तो उन काफिलों वालों के बारे में, और आप देखिए वो कंट्रीज जहाँ अमन नहीं है, उनके बारे में सोचिए कि कितना मुश्किल होता होगा ना, कितना मुश्किल होता होगा कि जहाँ अमन नहीं है उनसे पूछिए अमन क्या चीज है ना। जहाँ खाने पीने की किल्लत है वहां पूछिए, जैसा कि अफ्रीका गैम्बिया ऐसी जगहों पे लोग दूर दराज के इलाकों में जंगलों में रहते हैं, उनकी सिर्फ फसल कटती है तो उनको खाना मिलता है, और फिर अनाज मिलता है, और एक ब्रेड आज खाते हैं तो कल खाते हैं। आप देखिए मेन फोकस क्या होता है, भूख अगर अल्लाह ताला हमारी मिटा दे ना, तो फिर आप रिच हैं, है ना। जिसके पास 2 वक्त का खाना है, आप खा लिया, और दूसरे वक्त का स्टोर्ड है, ही इज अ रिच मैन, है ना। मगर उनके लिए तो एक वक्त का खाना खा के दूसरे वक्त सोचना पड़ता है। कुछ कुछ ममालिक में लोग परेशान है ना। अल्लाह ने हमको इतनी सारी फरावानी की है, और कुरैश से मुखातिब है अल्लाह ताला, लेकिन एक मायनों में हमसे भी मुखातिब है। आप देखिए ये वाकयात क्यों सुनाए जाते हैं, क्योंकि हम भी अल्लाह ताला के, यानी सोचें, हम सोचते नहीं हैं असल में, कि हम सोचें कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के जो एहसानात हैं हमारे ऊपर, कि अल्लाह ने हमको खाना खिलाया, इतनी बड़ी नेमत है ना। मैं एक दफा रिसर्च कर रही थी चैरिटी के, शायद मैं सदकात का जब दर्ज दे रही थी, तो सर्वे करने पे पता चला कि कई लाखों के बच्चे बिकॉज ऑफ हंगर मर जाते हैं, भूख की वजह से मर जाते हैं, है ना। हर साल, हर साल और हर दिन तकरीबन, मैंने रिसर्च किया, गूगल पर आप जाकर देखें, 700 के करीब डेली बेसिस पे बच्चे मरते हैं। और आप देखिए एक बच्चा मरता है तो पूरा खानदान हिलता है ना। फिर ऐसे कितने खानदान हिल जाते होंगे जो मरने के ऊपर बच्चों के भूख से, और उनकी हड्डियां, असलियां हम देखते हैं ना, मैल न्यूट्रिशन की वजह से क्या हाल होता है ना। बिल्कुल सब बच्चे लागर हो जाते हैं, और उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो तड़प तड़प के, बिलक बिलक के मरते हैं। तो ये अल्लाह ने हमको ये भी फरावानी की है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अच्छे मजे मजे के खाने खाते हैं, हर दिन हम डिसाइड करते हैं कि आज मैं क्या पकाऊंगी, है ना। आज बिरयानी बनाना है, आज चिकन बनाना है, आज मटन बनाना है, आज 65 75 क्या क्या पकाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी डोंट इवन थिंक कि ये कैसा अल्लाह ने कितनी फरावानी कर दी मेरे लिए। अल्लाह ने कितनी आसानियां मेरे लिए पैदा कर दी। तो अब मेरा काम क्या है, पर या वो तो चाहिए कि वो इबादत करें, रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करें, जबकि अल्लाह ने आपको भूख से अमन बख्शा, है ना। वो आमनहुम मिन खौफ, और खौफ से भी। आप देखिए हम दारुल हर्ब में रहते हैं, यहाँ मतलब नॉन मुस्लिम्स के दरमियान रहते हैं, लेकिन अल्लाह
कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा शुक्र है मेरे रब का कि उसने हमको अमन बख्शा। हम घरों में सुकून से रात गुजारते हैं, कितने यानी आसानी से, हमको कभी डर नहीं लगता कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई आके हमला करेगा या हमारे साथ क्या मामलात होंगे। कि अल्लाह का करम, जब अल्लाह ने आपको अमन बख्शा है तो क्या करना चाहिए कि अल्लाह की इबादत और लग जानी चाहिए, है ना। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, जब तुम फारिग हो बहुत ज्यादा मेहनत करो, व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ राग़िब हो जाओ, है ना। तो करना क्या चाहिए और ज्यादा, देखिए अगर आपके साथ ऐसे मामलात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको खाने पीने की टेंशन नहीं है, आपके पास काम वाली आती है पका देती है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भी आती है, आप पकाते हैं, अल्लाह ने आपको सेहत से रखा है, आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप यानी खा पी के आप सुकून में हैं, तो ये पेट भरने वाली जात अल्लाह की जात है ना। आपको अल्लाह ने खाने की नेमत दी, और फिर खौफ से भी अमन बख्शा, है ना। आपको कोई डर नहीं कि कोई दुश्मन आके हमला कर देगा क्या, है ना। मैं रात में सेफ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है ना, कि अल्लाह ने हम सबको अमन के साथ रखा है। उन ममालिक में जाकर देखिए जहाँ लोग रातों रात बेघर हो गए, यानी अर्थक्वेक की वजह से या बमबारी की वजह से। गजा में जो हालत होती थी, यानी हमने कई सारे ममालिक में देखा है ना, फलस्तीन में आप देखिए लोग घर से बेघर कर दिया जाता है, बाहर यानी उनके अपने घर से निकाल दिया जाता है। कितने सारे ममालिक हैं जिसमें लोग परेशान हैं, है ना। बोस्निया में मुसलमानों को निकाल कर बाहर कर दिया, बर्मा में कितने मुसलमानों को बेघर करके उनको घरों में डालकर जला दिया गया। आप देखिए ऐसी दहशतगर्दी तो नहीं है ना हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम। अगर आप देखिए अल्लाह ने कितना हमारे साथ, अगर हम इस आज के कॉन्टेक्स्ट में हम ले, तो सोचिए कि ये जो एनआरसी होने वाला था, है ना, ये लोग एक जेल जैसी बनाए हुए थे और उसमें डालने वाले थे। अगर वैसे जाके डाल देते, 500 लोग, सिर्फ 50 लोगों का खाना दिया जाता और हम खाने खाने को तरसते, हमारा क्या बनता, है ना। अल्लाह अल्लाह ने कितनी बड़ी फरा हमारे लिए आसानी की कि एकदम कोरोना आ गया, सबको अपने घरों में महफूज कर दिया अल्लाह ताला ने। ये क्या कम नेमत है ना। तो ऐसी नेमतें पाकर क्या करे बंदा, क्या टाइम पास करे, क्या म्यूजिक में और गलत चीजों में अपना वक्त लगाए, नहीं। बल्कि अल्लाह ने इतना बड़ा मेरे पर फजल किया है कि कोरोना में भी बिठा कर, जबकि पूरे रास्ते बंद हो चुके थे, है ना, यानी तिजारत बंद हो चुकी थी और बहुत सारी चीजें बंद हो चुकी थी, फिर भी बंद सारी चीजें बंद होने के बावजूद भी मेरे रब ने मेरे घर के अंदर मुझे खाना दिया, है ना। कितने गरीब ऐसे थे। मेरी एक फ्रेंड है हाजरा, वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह जैसा यानी गरीबों को जाकर खाना खिलाती है, और वो कहती है कि रेलवे स्टेशन के पास बाजी रोज के 200 लोग मर रहे थे खाने की वजह से, है ना, भूख की वजह से, कोरोना में। तो वो लिया लिया कर पकाकर, रोड साइड जो बैठे हुए रहते लोग रेलवे स्टेशन के पास, वो लिया लिया कर खिला रहे थे। तो कितने लोग ऐसे होंगे जो भूख की वजह से मर गए, और कितने सारे फैमिलीज खिला नहीं पाए कोरोना में, अपने बच्चों को भी मार दिया उन्होंने, और खुद भी मर गए। ऐसा हाल तो अल्लाह ने नहीं किया ना हमारा, है ना। उतनी मुश्किल में भी रब ने मुझे खिलाया है, ये अल्लाह का करम है ना। और आज भी खिला रहा है, जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से मुझे कोई तंगी नहीं थी है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, मुझे चाहिए कि उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें इस घर के रब की, है ना। तो बैतुल्लाह के घर, ये जो घर है अल्लाह का घर, ये किसका घर है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। किसने आपको भूख में खाना खिलाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आज आप देख लीजिए, खाना खाते हैं और फिर डकार मारते हैं, उसके बाद खत्म, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना भूल जाते हैं, अल्लाह तूने मुझे खिलाया। मेरे एक प्लेट में वो खाना कैसे आया पता है, वो चावल कोई राशन की दुकान से नहीं आया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा निजाम चलाया है मुझे एक प्लेट खाना देने के लिए। आसमानों में आप सोचिए, पहले तो एक समंदर, इतना बड़ा समंदर, वसी समंदर अल्लाह ताला ने बनाया, फिर वो समंदर के ऊपर इतना बड़ा सूरज अल्लाह ताला ने बनाया, उसकी शुआएं उसके ऊपर गिराते हैं रोज, और वो शुआएं ऊपर जाती है, हमने पढ़ा था ना वाटर साइकिल, वो ऊपर जाकर पूरे बादल बनाती है, और फिर वो बादल पूरे घने के बादल बन के फिर एक जगह, फिर वो बादलों को हाँकने के लिए बड़े बड़े फरिश्तों को अल्लाह ताला ने लगा दिया है। और फिर वो बादल इतनी मतलब तादाद में जमा होते हैं, और फिर वो जमा होकर बारिश बरसती है, और फिर जमीन फाड़ा है, वो शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, जमीन को फाड़ कर वो
बीजों को फाड़ने वाला खालिकुल हब्बी वन नवा मेरा रब है ना। एक गुठली के अंदर क्या ताकत है कि वो झाड़ बन जाए, एक बीज के अंदर क्या ताकत है कि वो यानी खेत बन जाए, है ना। खेत बनाकर लहलहा कर अल्लाह ताला वो चावल, वो गेहूं, वो रोटी, आज आप जो मजे से खाते हैं बिरयानी बनाकर, वो जो रोटी बनाकर आप खाते हैं, है ना, ये नेमत है। ये सब्जी तरकारी, ये सारी चीजें आप कैसे, यानी, और आप देखिए इवन अगर आप चलिए आप गोश्त खाते हैं तो वो बकरी भी क्या खाती है ना, वो ग़िज़ा खाती है जो अल्लाह देता है। वो खाना खाकर वो हमको ग़िज़ा देती है, और हमको अल्लाह ताला ऐसे बड़े निजाम के साथ मेरा एक प्लेट भरते हैं। और वो पानी का भी जो निजाम है, आसमानों से यानी बारिश बरसाकर स्टोर करे अल्लाह ताला पहाड़ों के ऊपर से, और फिर दरिया बनाकर हम तक पानी पहुंचाए। जमीन के अंदर परकोलेट होता है ना, पानी अंदर जाता है। तो अगर वो कैपेसिटी नहीं रखते अल्लाह ताला लोहे की तरह सख्त रख देते जमीन को और फाड़ते नहीं जमीन को, हमारे लिए वो अनाज नहीं उगाते, तो हम तो भूखे होके मर जाते ना। तो अल्लाह ने इतना बड़ा निजाम मेरे और आपके लिए चलाया है। अल्लाह ताला सबको, कितने लोगों को काम पे लगाए हुए कि मेरी बंदी का पेट भरना है ना। आपको और मुझको अल्लाह ताला इतना ज्यादा, इतनी सारी नेमतें देने के बाद रब को ही भुला देता है इंसान, है ना। अल्लाह ताला को ही याद नहीं रखते, सब चीज याद आती है। आज हम कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। तो कुरान पढ़ने के लिए टाइम निकालिए, है ना, अल्लाह की रजा के लिए, यानी अल्लाह के आगे झुकने वाले बन, और ज्यादा इबादत करने वाले बन, है ना, बहुत ज्यादा इबादत और अल्लाह के आगे झुकने वाले बन जाए। बहुत ज्यादा अल्लाह की हम्द और सना और तारीफ करे बंदा। वाकई अल्लाह तुमने मुझे और आपको पता है जो लोग खाना खाने के बाद ये दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हालिन मिन्नी वला कुव्वा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी, तमाम तारीफें उस जात के लिए है, अतअमनी जिसने मुझे खाना खिलाया, ओके, अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी, और ये रिज़्क़ उसने मुझे दिया है, मिन गैरि हालिन मिन्नी वला कुव्वा, मेरी कोई ताकत और कुव्वत के बगैर उसने मुझे खिला दिया। अगर मेरे ऊपर छोड़ते अल्लाह ताला कि बादलों को तुम ही हाँक कर लेकर आओ, कितना मुश्किल था, है ना। वो बारिश तुम ही बरसा लो। किसी ने कोशिश की है दुबई में, कहते हैं कि आर्टिफिशियल रेन बनाने की, मगर इतना बड़ा नुकसान हो गया। वो कुछ चीजें यानी आसमानों में लगाकर उन्होंने फोड़ा है उसको, यानी वो बादलों को यानी फोड़कर वहां से बारिश बरसाने की कोशिश की है, लेकिन एक साथ वो पूरा गिर गया, वो मतलब पानी बारिश। और आप देखिए हम कादिर नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन किस प्यार से बरसाते हैं बारिश भी, है ना। और फिर वो जमीन को जरखेज करना, वो सारा इतना बड़ा निजाम, अकल दंग रह जाती है, हैरान रह जाते हैं हम कि एक प्लेट खाना खिलाने के लिए अल्लाह ताला इतना बड़ा निजाम चला रहा है। हमको क्या बोले, सिर्फ मेरे आगे झुको, वो भी नहीं हो रहा इंसान से, है ना। कितना मुश्किल, 5 वक्त झुकना है, सिर्फ 5 वक्त, 5 मिनट्स अल्लाह को देना है। 24 आवर्स वाली जिंदगी, मेरी सांसें चलाने के लिए अल्लाह ताला मेहनत, हाँ, यानी इतनी मेहनत है सांसें, अगर अल्लाह ताला एक दिन के लिए हमारे हवाले कर दें चीजें, आप समझिए खाली हम यानी सांस सांस लेने के लिए अगर पंप कर लो तुम अपने लंग्स को, ऑक्सीजन खुद इनहेल कर लो, एक्सहेल कर लो, कितना मुश्किल होता है ना। तो ये सारी नेमतें अल्लाह ने जब हमको दी है, तो हमको चाहिए कि हम अपने रब की इबादत करें, है ना। तो असल मेन मरकजी मजमून यही है कि अल्लाह के एहसानात को याद करे बंदा, और अल्लाह ने मुझे इतनी सारी नेमतें दी हैं, तो क्यों ना मैं अपने रब की इबादत करूं, और खालिस उस रब की इबादत करें जिसने आपको खाना खिलाया है, जिसने आपको खौफ से अमन बख्शा। इसमें किसी का हाथ नहीं है, इतना बड़ा निजाम चलाने में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ, है ना। तो यानी दुश्मन से भी अगर आपको अल्लाह ताला ने अमन बख्शा है ना, बहुत सारी प्रोटेक्शन, हिफाजत। आप सोचिए कोई ऐसा दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है जो ताक में है, आप बाहर निकलते हुए आपका गर्दन उड़ा दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अल्लाह ताला ने नेमतें, जहाँ वहां बमबारी जहाँ हो रही है, वहां पूछिए कितना उनको डर लगा हुआ होगा कि कब आके बम हमारे घर के ऊपर गिरेगा, ऐसा तो नहीं है ना हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। चाहे आप कितने छोटे से घर में रह रहे हो, बट आप एक सुकून की नींद सो पा रहे हो, और एक 2 वक्त का खाना आपके पास है, तो यू आर लकी, है ना, आप खुश नसीब हैं। और फिर हमको चाहिए कि हम अपने रब की इबादत करें। और यानी आप देखिए बैतुल्लाह की वजह से इस्लाम से पहले भी वहां ताजीम मिलती थी, लोगों को इज्जत मिलती थी, और आज इस्लाम की वजह से भी हमको आज इज्जत मिलती है ना।
الحمدللہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں بولا جاتا ہے، امن سے رکھتے ہیں وہاں کے لوگوں کو، ہے نا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن میں رہیں تو ایسے اللہ کے کلام سے جہاں ایسی محفلیں ہوتی ہیں وہاں سے جڑنے میں ہماری کامیابی ہے نا. تو انشاءاللہ ہم یہیں تک اپنے اس سورہ کو سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سورہ ہم دیکھیں گے.